السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ دیکھ رہے ہیں کوانٹا ایجوکیشن اور آج ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے فزکس کی 2022 کی پیپر کی پیئرنگ اسکیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کن چیپٹرز میں سے کتنے سوالات آئیں گے، کن چیپٹرز کو تیار کر کے امتحانات پاس کیا جا سکتا ہے، کن چیپٹرز کو تیار کریں کہ 2 مکمل لانگ سوالات حل ہو جائیں گے، مختصر سوالات کیسے تیار کیے جائیں کہ تینوں سیکشن میں سے سوالات مکمل حل کیے جا سکیں، ایم سی کیوز کی تیاری کہاں سے کی جائے۔ ان تمام سوالات کے جوابات کے لیے ہماری اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ مزید امتحانات کی رہنمائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ریسرچ امتحانات میں سب سے پہلے کوسچن نمبر 1 پوچھا جاتا ہے جو ایم سی کیوز پر مشتمل ہوتا ہے۔ ٹوٹل 12 ایم سی کیوز کے سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے جن کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہوگی۔ سب سے پہلے چیپٹر نمبر 10 سمپل ہارمونک موشن اور چیپٹر نمبر 11 ساؤنڈ، ان دونوں چیپٹرز میں سے ایک سوال جو ہے وہ آپ سے پوچھا جائے گا۔ چیپٹر نمبر 12 جیومیٹریکل آپٹکس میں سے 2 سوالات، چیپٹر نمبر 13 الیکٹروسٹیٹک میں سے 1 سوال، چیپٹر نمبر 14 کرنٹ الیکٹریسٹی میں سے 2 سوال، چیپٹر نمبر 15 الیکٹرو میگنیٹزم میں سے 1 سوال، چیپٹر نمبر 16 بیسک الیکٹرانکس میں سے 2 سوال، چیپٹر نمبر 17 اور 18 انفارمیشن ٹیکنالوجی اٹامک اینڈ نیوکلیئر فزکس میں سے ایک ایم سی کیوز پوچھا جائے گا۔ اب موسٹلی طالب علموں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ ایم سی کیوز تیار کرنے کے لیے کون سے اہم پوائنٹس ہیں جن کو فالو کر کے ہم اچھا سکور کر سکتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے تو آپ اپنے اسباق میں شامل کانسٹنٹس کی ویلیوز کو لازمی یاد کریں۔ جیسے میں نے یہاں لکھا ہوا ہے چارج آن الیکٹران 9.1 ملٹیپلائی 10 پاور -31۔ اسی طرح پروٹون، نیوٹرون کے اوپر چارج، میس، کیپٹل جی کی کیا ویلیو ہوتی ہے، اس کا یونٹ کیا ہوتا ہے، یہ تمام کانسٹنٹس کی ویلیوز آپ کو بہت اچھے سے یاد ہونی چاہیے۔ آپ کے اسباق میں جتنی کوانٹیٹیز شامل ہیں ان سب کے یونٹس بہت اچھے سے تیار کریں۔ فورس کا یونٹ نیوٹن، ٹائم کا یونٹ سیکنڈ۔ اسی طرح جتنی کوانٹیٹیز آپ نے پوری کتاب میں چیپٹرز کے اندر پڑھے ہیں ان کی ایک الگ لسٹ بنا لیں اور ان یونٹس کو بہت اچھے سے یاد کریں۔ فزکس میں اسباق میں ڈیفینیشنز اور ڈیریویشنز والے آپ ریزلٹ دیکھتے ہیں۔ جیسے آپ گریویٹیشنل لا کی ڈیریویشن کرتے ہیں تو اس کا کیا ریزلٹ ہے، ان تمام ڈیریویشنز کے جو ریزلٹس ہیں وہ ایم سی کیوز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں۔ جیسے آپ فورس کی ڈائمینشن معلوم کرتے ہیں تو یہاں فورس کی ڈائمینشن جو ہے وہ بریکٹس میں لکھی ہوئی ہے MLT پاور -2۔ ڈیفینیشن لکھی جاتی ہیں گرین کلر کے باکس میں فزکس کے ٹیکسٹ بک میں، ان ڈیفینیشنز کو ایگزیکٹ یاد کریں۔ وہ ڈیفینیشنز جو سی ہیں وہ طالب علموں کی ایم سی کیوز حل کرنے میں مدد کر سکتی ہیں۔ تمام اسباق میں شامل سائڈ باکس انفارمیشنز کو ریویو ضرور کریں۔ بعض اوقات کچھ ایم سی کیوز سائڈ باکس انفارمیشن سے بھی پوچھے جاتے ہیں اور کوشش کریں کہ پاسٹ پیپر میں جو ایم سی کیوز سائڈ باکس انفارمیشن سے آئے ہیں انہیں ایٹ لیسٹ ان سائڈ باکس کو مکمل تیار کریں۔ زیادہ تر چانسز یہ ہوتے ہیں کہ انہی سائڈ باکس سے آپ کو ایم سی کیوز پوچھے جا سکتے ہیں۔ اور سب سے اہم پوائنٹ، آپ تمام اسباق کے 10 سال کے پرانے پیپرز کے جو سوالات ہیں ان کو لازمی حل کریں۔ ان تمام پوائنٹس پر عمل کرنے سے آپ کے ایم سی کیوز کے سوال میں یقیناً اچھا سکور کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ بہت جلد پچھلے 20 سالہ پیپرز کے سوالات کے اسباق کی طرز میں حل ہماری طرف سے طالب علموں کے لیے دستیاب ہوگا۔ اس چینل سے جڑے رہیں تو یقیناً آپ کو بہت جلد اس کی اپڈیٹ مل سکے گی۔ ایم سی کیوز کے بعد آپ کے پاس سبجیکٹیو ٹائپ پیپر آتا ہے۔ سبجیکٹیو ٹائپ پیپر میں آپ کو سب سے پہلے شارٹ کوسچنز کا حل کرنا ہوتا ہے اور کوسچن نمبر 2 میں کل آپ کو جو شارٹ کوسچنز پرووائڈ کیے جاتے ہیں ان کی ترتیب ایسے ہے۔ سمپل ہارمونک موشن کے چیپٹر میں سے 3 سوال، جیومیٹرک آپٹکس کے چیپٹر میں سے 3 سوال اور بیسک الیکٹرانک کے چیپٹر میں سے 2 سوال۔
टोटल इस सेक्शन में 8 सवालात पूछे जाते हैं और आपने 5 सवाल जो से हैं वो हल करने होते हैं। अब इसमें देखा गया है कि अगर आप 10 और 12 चैप्टर को अच्छी तरह तैयार कर लें तो आप 5 सवाल का जो टारगेट है वो बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हैं। अब आमतौर पर तालिब इल्म ये करते हैं कि चैप्टर 10 और 12 की एक्सरसाइजेस तैयार कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम्स में जो चैप्टर 10 से 3 सवालात पूछे गए हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सरसाइज से पूछे गए, वो चैप्टर के अंदर एडिशनल सवालात से भी हो सकते हैं। और बाज़ औक़ात तालिब इल्म चाहता है कि वो एडिशनल सवालात को तैयार किए बगैर अपना ये टारगेट पूरा कर ले, तो ऐसा करने के लिए तीनों चैप्टर्स चैप्टर 10, चैप्टर 12 और चैप्टर 16 की एक्सरसाइज को मुकम्मल तैयार करें कि बिलफर्ज अगर पहले 2 चैप्टर्स में से कुछ सवालात एडिशनल में से आते हैं तो वो आपके चैप्टर 16 की एक्सरसाइज वाले पोर्शन से मुकम्मल हो जाए और आप अपने चैप्टर क्वेश्चंस जो 5 हैं उनका टारगेट अचीव कर सकें। ज़्यादा बेहतर ये होता है कि जो पहले के असबाब हैं एटलीस्ट आप उनके एडिशनल और एक्सरसाइज मुकम्मल तैयार करें। ये सवाल मुकम्मल अगर आप तैयार कर लेते हैं तो सिर्फ 2 चैप्टर्स तैयार करने से आप बआसानी 10 नंबर का पेपर जो सा है वो हल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में जिन चैप्टर्स में से सवालात पूछे जाते हैं उनकी तरतीब कुछ इस तरह से है। साउंड के चैप्टर में से आपसे 2 सवालात पूछे जाएंगे, चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक में से 3 और चैप्टर 17 में से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में से कुल 3 सवालात आपसे पूछे जाएंगे। इस सवाल में भी आपने 5 सवालात हल करने होते हैं, 5 जुज हल करने होते हैं बेसिकली। तो अगर आप चैप्टर 13 को अच्छी तरह तैयार कर लेते हैं तो आप बआसानी 5 सवालात का टारगेट जो है वो मुकम्मल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जिस तरतीब से सवालात आते हैं उनमें करंट इलेक्ट्रिसिटी में से 3 सवालात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में से 3 सवाल, एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स में से 2 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। इस चैप्टर में से भी आपने 5 सवाल हल करने चाहते हैं। वो तालिब इल्म जिनकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है, वो एग्ज़ाम से सिर्फ 1 महीना पहले तैयार कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप सिर्फ पासिंग क्राइटेरिया को मुकम्मल कर लें, तो वो इन चैप्टर्स को ऑप्शंस पे छोड़ सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जो 2 क्वेश्चन हैं उसमें आप 10 और 10 मार्क्स 20 मार्क्स का पेपर जो सा है वो तैयार कर लेते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि फिर चैप्टर जो अबव है क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के, उन्हें आपने इस तरीके से तैयार करना है कि उनमें से जो सवाल है वो आप मुकम्मल तौर पे 5 के 5 हल करके हैं और मेक श्योर करें कि वो आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, क्योंकि आप अपनी तैयारी जो है वो मुकम्मल तौर पे सिलेक्टिव लेके जा रहे हैं। तो सिलेक्टिव चैप्टर्स अगर आप सिलेक्ट कर रहे हैं और उन चैप्टर्स में से भी आप सिलेक्शन कर रहे हैं तो ये एक अच्छा फैसला नहीं होगा। एटलीस्ट जो चैप्टर्स आप तैयार कर रहे हैं वो चैप्टर्स 100% मुकम्मल तैयार करें। और जो तालिब इल्म अच्छे मार्क्स हासिल करने के ख्वाह वो यकीनन क्वेश्चन नंबर 4 को नहीं छोड़ सकते, वो इसमें से चैप्टर नंबर 14 और 15 लाजमी तौर पे तैयार करें ताकि उनका जो 5 सवालात का टारगेट है क्वेश्चन नंबर 4 का वो मुकम्मल हो सके। लेकिन अगेन अच्छा स्कोर करने वाले तालिब इल्मों के लिए ज़रूरी है कि वो जो चैप्टर्स तैयार कर रहे हैं वो उसके एडिशनल और एक्सरसाइज के सवाल जो उनसे हैं वो मुकम्मल तैयार करें। जनरली ये देखा गया कि मैट्रिक के फिजिक्स के इम्तिहानात में पहले 6 असबाब तैयार करने से आपके मरूजी सवालात जो हैं वो बड़े अच्छे से हल हो सकते हैं। देन इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है लॉन्ग क्वेश्चंस का, जिसमें 3 सवालात लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। हर सवाल के 2 जुज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट चैप्टर 10 या 16 से पूछा जाएगा और बी पार्ट चैप्टर 12 से। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट चैप्टर 11 या 13 से और बी पार्ट चैप्टर नंबर 17 से। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट चैप्टर नंबर 14 या 15 से और बी पार्ट चैप्टर नंबर 18 से पूछा जाता है। याद रखना कि मुकम्मल 2 सवालात हल करने होते हैं, यानी अगर आप सवाल नंबर 5 को सिलेक्ट करते हैं तो इसका ए और बी पार्ट दोनों हल करना लाजमी है। आमतौर पे तालिब इल्म ये गलती करते हैं कि उन्हें अगर क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट आता है और क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट आता है तो वो दोनों को मिलाकर अपना एक सवाल मुकम्मल कर लेते हैं।
हालांकि ऐसा करना दुरुस्त नहीं है। अगर आप सवाल नंबर 5 को सिलेक्ट करते हैं तो आप पे लाजमी है कि आप उसी का ए और बी पार्ट दोनों हल करें। कमजोर तालिब इल्मों को यह मशवरा है कि वो कम से कम हिम्मत करके पहले 4 असबाब के लॉन्ग लाजमी तैयार करें ताकि उनके जो 2 सवालात हैं वो मुकम्मल हल हो सके। इस पर भी बहुत जल्द हम वीडियो बनाएंगे कि कौन कौन से सवालात लॉन्ग बनते हैं और कौन कौन से नहीं। फिजिक्स के लॉन्ग क्वेश्चन से एक जो गलती है तालिब इल्मों की वो ये है कि वो समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए पार्ट है वो हमेशा थ्योरी के चैप्टर्स का होता है और बी पार्ट न्यूमेरिकल का, लेकिन ऐसा दुरुस्त नहीं है। पेयरिंग स्कीम अपनी तरतीब से हटके भी आ सकती है जो गिवन है, और आप ऑलरेडी जो अपनी तैयारी है वो चॉइस पर कर रहे हैं, तो फर्दर उसको चॉइस पे ले जाना जो है वो अच्छा नहीं होगा। लिहाजा जो असबाब आप तैयार कर रहे हैं उनकी न्यूमेरिकल्स और थ्योरी दोनों को मुकम्मल तैयार करें। अच्छा स्कोर करने वाले तालिब इल्म चैप्टर 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 को मुकम्मल तौर पे तैयार करें, यानी उनके एडिशनल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और उनके न्यूमेरिकल। जैसा मैंने पहले डिस्कस किया कि आप पहले ही अपनी तैयारी को चॉइस पर कर रहे हैं, तो मजीद चॉइस पर ले जाना अच्छा फैसला नहीं होगा। बाज़ औक़ात इम्तिहानात में देखा गया कि सवालात पेयरिंग स्कीम से हटकर आ जाते हैं, तो ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए आप अपने असबाब को मुकम्मल तैयार करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। बाकी तमाम मज़ामीन की वीडियो भी इस प्ले लिस्ट में हमारे पास मौजूद है।